क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। Jai Jinendra, everybody. My name is Komal and I am tuned in from Nairobi, Kenya. I am part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association. And yesterday we marked Srimad Rajchandra Ji's Samadhi Din. Who does not remember Srimad Rajchandra Ji? It could be the young, it could be the old, it could be somebody who is who likes to listen about soul experience, or maybe somebody who just likes poetry. It could be somebody who is a fan of Mahatma Gandhi and is aware that he played an instrumental role in Mahatma Gandhi's life. So let us remember this great soul, Srimad Rajchandra Ji, and as we mark his Samadhi Din, meaning his death anniversary, we know that the soul is Ajar and Amar, and it does not die, and so there is no death really for an enlightened soul. Somebody like Srimad Rajchandra Ji attained soul experience or Samyak Darshan at the age of 24. Can you imagine, at the age of 24, such a young person attained Samyak Darshan? As we celebrate his life today through poetry and prose, first we would like to play a short video of his Samadhi Museum, which is in Rajkot. Vishal, please start. Please check the voice. પોતાની સમીપના અંતેવાસીઓને પોતાની અદ્ભુત અંતરંગ દશા તથા ઉત્તમ ગતિ દર્શાવતા જણાવ્યું હતું કે નિશ્ચિંત રહેજો, આ આત્મા શાશ્વત છે અને તે અવશ્ય વિશેષ ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થવાનો છે. ભાઈનું ચોક્કસ સમાધિ મૃત્યુ છે. દેહોત્સર્ગ પૂર્વેની અંતિમ 6 કલાકની નિશ્ચલ સમાધિ અવસ્થામાં પ્રવેશતા પરમ કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના અંતિમ શબ્દો હતા, હવે હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. ઓમ શાંતિ. શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના દેહ વિલયની ભૂમિ રાજકોટમાં સંવત 1957ની ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે આ કાવ્ય રચના થઈ. બરાબર એમના દેહ વિલયના 10 દિવસ પહેલા મુમુક્ષુઓની વિનંતીને પરિણામે આ કાવ્ય રચાયું. જાણે એમનો દિવ્ય અંતિમ સંદેશ ન હોય. આ કાવ્યમાં મોક્ષપદની પ્રાપ્તિનો માર્ગ એમણે દર્શાવ્યો છે. એને માટે જરૂરી એવી જિનેશ્વરની ભક્તિ, સદગુરુની પ્રાપ્તિ અને જીવની ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રાથમિક પાત્રતાની એમણે જિકર કરી છે. સતદેવ
સતધર્મ, સદગુરુ અને જીવની પાત્રતા એ ચારમાંથી કોઈ પણ એક તત્વનો અભાવ હોય તો મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મોહથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પને લીધે આખો સંસાર રચાય છે. આવા મોહમય સંસારમાંથી મુક્ત થવા માટે અંતર્મુખ બનવું પડે. મતાર્થ દૃષ્ટિ જાય નહીં ત્યાં સુધી આત્માર્થ દૃષ્ટિ આવે નહીં. આવા અંતર્મુખ યોગની પ્રાપ્તિ શ્રી સદગુરુ વડે જ થાય છે. મધ્યાને જેમ માનવીનો પડછાયો પોતામાં સમાઈ જાય છે, તે રીતે બધા જ વિકલ્પો શમી જાય છે અને સ્વભાવમાં મન લીન થાય છે. इच्छे छे जे जोगी जन अनंत सुख स्वरूप मूल शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जीन स्वरूप सयोगी जीन स्वरूप स्वभाव गम्यते अवलंबन आहार जिन पद थी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकार तेह स्वरूप प्रकार जिन पद निज पद एकता भेद भाव नहीं काई लक्ष्य थवाने तेहनो कहा शास्त्र सुखदाई कहा शास्त्र सुखदाई प्रवचन दुर्गम्यता थाके अतिमतिमान अवलंबन श्री सद्गुरु सुगम अने सुख खान सुगम अने सुख खान चरणी अतिशय भक्ति सही Thank you, Vishal. Now I would like to invite our speaker for tonight, Pandit Shri Sunil Shastri of Rajkot. Who doesn't know him? I think he's famous throughout the globe. He has visited Nairobi twice. He is an exceptionally wonderful speaker who connects with his audience and has a melodious voice. He is very well educated on soul experience, how to explain to the listeners. And also he runs the Pathshala in Rajkot, one of the most popular ones in India, where you can see that a large number of students attend. I think there are about 200 to 300 students in that Pathshala.
It is very nice to see that a teacher is so encouraging that he has made a syllabus just like school. And he is really motivating the children there to learn in a proper school way. And they have gone to the extent to have auto rickshaws to pick them and drop them. So that really shows his volition to preserve Jain Dharma to the next generation. Without further delay, I invite Pandit Shri Sunil Shastri. Please come forward. ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् श्रीमत्परं गम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं दिनशासनम् सर्वज्ञनो धर्मसुषणजानि आराध्य प्रभावाणि अनाथ एकांत सनाथ थासे एना विना कोई न बायस्यासे। जैन तीर्थंकरों की प्रणाली और पद्धति के प्रक्रम में आध्यात्मिक ज्ञानावतार ज्ञानी पुरुष परम वैराग्य की साक्षात मूर्ति परम कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी, जिनकी 121वीं पुण्यतिथि देहोत्सर्ग का पावन पर्व पावन उत्सव कल 1 मई 1 मई को ही संपन्न हुआ। लेकिन हम आप लोग स्वाध्याय की कुछ अनुकूलता के हिसाब से आज उस देहोत्सर्ग के प्रसंग को उत्सव को कृपालु देव के गुणानुवाद के माध्यम से उनके साहित्य के माध्यम से आज हम आप लोग संपन्न कर रहे हैं। देखिए, केवल 34 साल की उम्र, 35 भी पूरी उम्र जिन्होंने नहीं भोगी, अत्यंत क्षीण काया लेकिन विराट केवल ज्ञान की आत्म स्वभाव की भावना को अपने अंतरंग में संजोया हुआ व्यक्तित्व, हर शब्द शब्द में वैराग्य, हर वाक्य वाक्य में गुरु भक्ति की महिमा और सत्संग की झंकना। सच में इस पंचम काल में, ऐसे हुंडाव सर्पिनी पंचम काल में, दुखद पंचम काल में
ऐसे महापुरुषों का उदित होना, अवतरित होना, ये असंख्य भव्य जीवों के ही महापुण्य के प्रसंग से ऐसे बनाव बनते हैं। जो भी जीव ऐसे महापुरुषों के सत्संग में आते हैं, जरूर उन्हें अध्यात्म की रुचि, अध्यात्म का रंग, वैराग्य की भावना स्वाभाविक रीति से ही दृढ़ होती है। बहुत विराट व्यक्तित्व हैं, हजारों ग्रंथ श्रीमद जी के व्यक्तित्व के ऊपर लिखे गए हैं और हजारों उनके सुवाक्य, सुवचन आगम वाक्य के रूप में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, व्याख्यानों में उनको कोट किए जाते हैं, उद्धृत किए जाते हैं। यहाँ तक कि शोध कार्यों में भी बड़े आदर के साथ उनको संदर्भ के रूप में स्थान दिया जाता है। मैं यहाँ उनके अभी जीवन से संबंधित उनका गद्य साहित्य, उनका पद्य साहित्य, प्रोज एंड पोएट्री, सोलफुल प्रोज एंड पोएट्री, जो एक आध्यात्मिक उनके गद्य हैं, प्रोज हैं, कुछ काव्य कविताएं गुनगुनाने जैसी, निरंतर गुनगुनाने जैसी ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं। जैसे हम आप लोगों ने अभी मंगलाचरण में भी मैंने एक छंद पढ़ा था, द्वादशांग अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं के विषय में अशरण भावना का यह छंद मैंने जानबूझ करके पढ़ा। उसमें सर्वज्ञ के धर्म की शरण लेने की बात और अंतरंग के प्रभाव पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उछलते वीर्य पूर्वक आराधने की प्रेरणा, और सर्वज्ञ के बिना सारा जगत अनाथ है, सर्वथा अनाथ है, और सर्वज्ञ के शरण में जावे तो सारा जगत सनाथ है। नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब पति, नाथ मतलब सर्वस्व जिनकी छत्र छाया। अनाथ एकांत सनाथ था से, ये ना विना कोई न बाह्य स्याह से। सर्वज्ञ के बिना कोई भी बाह्य में सहाय कर सके, मदद कर सके, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं। तो अशरण भावना में सर्वज्ञ भगवान की शरण लेने की बात कही, जो हम आप लोग नमोकार मंत्र में बोलते हैं, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठी शरण है, और केवली प्रणीत वीतरागी धर्म शरण है। उसको यहाँ एक ही शब्द में कहा, सर्वज्ञ का धर्म शरण है। केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो अंतिम सत्य तो धर्म का शरण है। बीच बीच में मैं कई यहाँ आप लोगों को कृपालु देव के सुवाक्य भी प्रस्तुत करूंगा और उनके गद्य पद्य साहित्य के बारे में खूब सारी चर्चा, बहुत सारा मैटर अपने पास है, उसकी हम आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए, मैं एक दो चार पहले वाक्य आप लोगों को बताता हूं। कृपालु देव ने इतनी छोटे छोटे सुंदर सुंदर सुवाच और सुवाक्य हम आप लोगों को दिए हैं। जैसे सर्वज्ञ शब्द समझो बहु गूढ़, वो कहते हैं सर्वज्ञ शब्द ही समझना अपने आप में एक रहस्य है। गूढ़ मतलब रहस्य। ये हमारे सर्वज्ञ भगवान है, ये कहना सरल है, लेकिन सर्वज्ञ शब्द का भावभाष, सर्वज्ञता की प्रतीति का होना, ये अपने आप में एक रहस्यमयी है, चमत्कारी वस्तु। सत्संग के बारे में एक बहुत सुंदर वाक्य है,
आत्मा ने सत्य रंग चढ़ावे ते सत्संग, कि अपने आत्मा को सत्य का रंग जो चढ़ावे उसका नाम सत्संग। और कहते हैं कि सत्समागम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। आप सभी को ख्याल है श्रीमद जी कृपालु देव की जन्मभूमि ववाणिया। आज मैंने अभी दोपहर एक वीडियो देखा जिसमें ववानिया से अंतिम बार निकलते हुए जब वे वांकानेर की तरफ प्रयाण कर गए, तब अपने जन्म स्थान की तरफ देख करके उन्होंने हाथ जोड़ा। गांव के बाहर आते ही गांव की तरफ देख करके उन्होंने हाथ जोड़ा। ये ववाणिया वही जगह है जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्हें बचपन में ही अत्यल्प आयु में ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ। क्या उनके जाति स्मरण से संबंधित जीव गयो एटले शू, जीव गया क्या मतलब है उसका? अपने दादाजी से बड़ी जिज्ञासा से वे प्रश्न पूछते हैं। और स्मशान में चिता जल रही है, पेड़ की टहनी पर खड़े खड़े कृपालु देव देखते हैं, देखते ही देखते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही महापुरुष जब अध्ययन स्वाध्याय के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और शतावधानी के प्रयोग करने लगते हैं, पूर्व संस्कारवश ऐसा दिव्य क्षयोपशम ज्ञान उनको उदित होता है। लेकिन उनके अनुयायियों ने कहा यह शतावधानी के प्रयोग आत्म आराधना के लिए बाधक है। तत्काल उस प्रयोग को वे बंद कर देते हैं। अंग्रेजों ने उन्हें आमंत्रित किया था, आप आइए हमारे यहाँ शतावधानी का प्रयोग कीजिए। कि नहीं, हमें जो ज्ञान, जो क्षयोपशम ज्ञान आत्म ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए बाधक होता है, हम उसका प्रयोग नहीं करें। क्या कैसी दिव्य दृष्टि! जहां त्या थी उस ववानिया में जो जन्म स्थान है, जो अभी बना हुआ है नया, वहां एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है कि जहां त्या थी राग द्वेष रहित तऊ थऊ ते धर्म। कि हर जगह से, जहां तहां से राग द्वेष से रहित होना, ये सचमुच में धर्म है। सर्वज्ञ शब्द समझाओ बहु गूढ़। सर्वज्ञ समझाना भी बड़ा गूढ़ है, रहस्य। अरे सर्वज्ञता की प्रतीति होती है, सर्वज्ञ समझाने का विषय नहीं। में एक बहुत सुंदर 246वें पृष्ठ के ऊपर एक बहुत मार्मिक वाक्य है। सतपुरुष ना एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंता अनंता आगमो रह्या छे। सतपुरुषों के एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में अनंत 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 आगम रहे हुए। कितना गुरु वचनों के प्रति, ज्ञानियों के वचनों के प्रति उनको महिमा है। एक बहुत छोटा सा वाक्य है, मार्ग पामेलो मार्ग पमाड़ से। क्या कितनी गजब की बात है। मार्ग पामेलो मार्ग पमाड़ से। मार्ग को पाया हुआ जो है, स्पर्शा हुआ जो है, वही दूसरों को मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपने जिनागम भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि के ही वचन अन्य जीव के सम्यक्त्व में निमित्त होते हैं। कैसा अद्भुत अनुसंधान मिलता है, कितनी सुंदर बात है। देखो, और दृष्टि एवी स्वच्छ करो, अपनी दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दोष दिख जाए और देखने से वे दोष क्षय हो जाए।
अपने दोषों को देखने की दृष्टि कैसे इस महापुरुष को सूझी होगी, आप कल्पना कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर प्रकरण इसी क्रम में मैंने तो केवल आपको ये एक झलक 4, 5, 6 प्रकरणों का अभी दिया। देखिए, एक शुभ चंद्राचार्य का ज्ञानार्णव ग्रंथ है, अपने दिगंबर जैन आचार्य शुभ चंद्राचार्य है। उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा ज्ञानार्णव में कि जो पुरुष अपने अपने वचनों से पंच परमेष्ठियों की गुणानुवाद रूप भक्ति करते हैं, ऐसे अल्पमतियों की कोई कमी नहीं है भक्ति भाव आदि करने वाले। लेकिन आगे लिखा, ऐसे पुरुष नित्य शाश्वत आनंद स्वरूपी अमृत सागर, ऐसे शुद्ध सहजात्म स्वरूप परमात्म पद का साक्षात अनुभव करके संसार के भ्रम को यथाशीघ्र छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, अभाव कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। कहने का मतलब ये है, भगवान की भक्ति करने वाले दुर्लभ नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान बन जाने वाले महादुर्लभ है। ये भक्ति का मार्ग नहीं है, भक्ति के माध्यम से आत्मशक्ति को जागृत करते हुए भगवान बनने का मार्ग है। ये शुभ चंद्राचार्य का अद्भुत कोटेशन है, संदर्भ है। मैंने ज्ञानार्णव का ही संदर्भ इसलिए भी दिया, जिन 21-22 ग्रंथों की लिस्ट कृपालु देव ने दी है, उनमें 18-19 ग्रंथ तो अपने दिगंबर आचार्यों के ग्रंथ है, जिनमें जिस ग्रंथ को वन शास्त्र कहा जाता है, पद्मनंदी पंचवंश का, श्रीमद जी के सैकड़ों पत्रों में उसके कोटेशन है। उन ग्रंथों में ज्ञानार्णव का भी नाम है, उन ग्रंथों में आत्मानुशासन का भी नाम है। आत्मानुशासन नु हवे मनन करवा योग्य छे। आत्मानुशासन का अब मनन करने जैसा है। उनमें से 4-6 कोटेशन रूप श्लोक भी इस जीवन चरित्र में उन्होंने दिए। ऐसे अद्भुत पंचास्तिकाय का तो उन्होंने खुद ने ही भावानुवाद किया है। पंचास्तिकाय प्रवचन सार की कई गाथाओं का उन्होंने उद्धरण दिया है। समय सार के कई प्रकरण उन्होंने लिखे हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ज्ञानार्णव में एक दूसरा श्लोक आता है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जिनके वचनों का लाभ हमें मिलना, लाभ लेना, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक् तत्वोपदेशाय सताम सुक्ति प्रवर्तते। सताम सुक्ति, सज्जनों की सुक्ति, सज्जनों के सुवाक्य इसलिए प्रवर्तते हैं। प्रबोधाय, जगत के जीवों को बोध देने के लिए। विवेकाय, जगत के जीवों को विवेक की प्राप्ति के लिए। हिताय, जगत के जीवों के हित के लिए। प्रशमाय, कषायों की शांति के लिए, वीतराग संभाव के लिए। और सम्यक तत्वोपदेशाय, सम्यक तत्व का उपदेश देने के लिए ज्ञानी धर्मात्माओं के वचन प्रवर्तित होते हैं। ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी एक विरल स्वरूपनिष्ठ तत्ववेत्ताओं में से एक, जिन्हें हम अद्भुत वैराग्य की मूर्ति, अद्भुत ज्ञान की मूर्ति कह सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है, इनको हम ज्ञानावतार कहें, ज्ञान निधान कहें, ज्ञान भास्कर कहें, ज्ञान मूर्ति कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व। देखिए, शास्त्रों के ज्ञाता तो बहुत होते हैं, उपदेशक भी कम नहीं होते हैं, लेकिन जिनका जीवन ही शास्त्रमय होवे, ऐसे व्यक्तित्वों में यदि कोई व्यक्तित्व है तो श्रीमद जी। जैसे अभी सभा के प्रारंभ में संचालिका महोदय
कोमल बेन ने एक बात कही कि गांधी जी के जीवन में मानो शास्त्रीय राग, इंस्ट्रूमेंटल वॉइस, इंस्ट्रूमेंटल शब्द का प्रयोग किया था। इस गांधी जी के चित्त में मानो एक शास्त्रीय संगीत का मंगल निनाद उन्होंने अनुदित किया था। गांधी जी के जीवन में उनके बहुत बड़े प्रभाव हैं। जब वे अफ्रीका से राजकोट आए, सबसे पहले, क्योंकि उनके आने से पहले ही श्रीमद जी का देहावसान हो गया था, देह परिवर्तन हो गया था, सीधा वहां से आए, राजकोट की स्मशान भूमि में वहां गए जहां उनका अंतिम अनुष्ठान हुआ है, अंतिम क्रिया जहां हुई है। उन्होंने लिखा है गांधी जी ने, देखिए मैं उनके पत्र का ही अंश पढ़ता हूं। मारा जीवन में श्रीमद राजचंद्र जी की छाप मुख्य पणे छे। मेरे जीवन में यदि प्रमुखता से किसी की छाप है तो श्रीमद जी की है। उन्होंने जो टॉलस्टॉय को भी पढ़ा था, रस्किन को भी पढ़ा था, अनटू दिस लास्ट, इसमें से उन्होंने सेल्फ डिपेंड, जात मेहनत की प्रेरणा उन्होंने ली थी, स्व परिश्रम की। पण श्रीमदे मारा ऊपर ऊंडी असर करी छे, बहुत गहरी छाप उन्होंने छोड़ी है। घणी वार कहीने लखी गयो छू कि मैं घणाना जीवन मांथी घणुं लीधुं छे। मैंने कईयों के जीवन में बहुत कुछ लिया है, पण सौथी वधारे, यदि सबसे अधिक कोईना जीवन मांथी मैं ग्रहण कर्युं होय, यदि मैंने किसी के जीवन में से अधिक ग्रहण किया होवे तो कवि श्री ना जीवन में। देखो गांधी जी, राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी ऐसा नहीं लिखते, इतना अहोभाव पूर्वक। कवि मतलब विद्वान होता है, कवि श्री ना जीवन में, मतलब ऐसे विद्वान महापुरुष श्रीमद जी के जीवन में से मैंने प्राप्त किया है। कितना आदर सम्मान, सारे इनके प्रश्नोत्तरी की चर्चा इंग्लिश में सब जगह कोबा आश्रम में से भी छपी हुई है। बहुत सुंदर संकलन, पढ़ने जैसा है। गांधी जी के अनुयायी थे काका साहेब कालेलकर, मराठी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ये लिखा, जिन्होंने गुजराती में भी बहुत कुछ लिखा है नर्मदा नदी आदि के ऊपर। तो काका साहेब कालेलकर तो लिखते हैं, श्रीमद तो प्रयोग वीर थे। क्या कहा? प्रयोग वीर, मतलब अध्यात्म और धर्म को यदि प्रयोग में रखना होवे तो सचमुच में वीर पुरुषों में यदि नाम आता है तो श्रीमद जी का नाम आता है। देखिए कितना बढ़िया लिखा उन्होंने, प्रयोग सिद्ध समय सार नो दर्शन करू होय, मतलब समय सार का प्रयोग का यदि दर्शन करना होवे, परमात्म प्रकाश नु दर्शन करू हो। देखिए 18-20 ग्रंथों में परमात्म प्रकाश का भी नाम है। प्रयोग सिद्ध समाधि शतक नु दर्शन करू होय, समाधि शतक का भी नाम है, पूज्यपाद आचार्य की रचना है। परमात्म प्रकाश योगिंदु देव की रचना, समय सार आचार्य कुंद देव की रचना। प्रशम रति नु दर्शन करो होय, प्रयोग सिद्ध योग दृष्टि नु दर्शन करो होय, आत्म सिद्धि नु दर्शन करो होय, तो जोई लो श्रीमद, देख लो श्रीमद, समय सार, परमात्म प्रकाश, प्रशम रति, समाधि शतक, इनका यदि प्रयोग यदि हमें देखना होवे तो श्रीमद जी के जीवन को देखो। ते समय सारादि शास्त्रों में वर्णित करेला भावोनु जीवतु जागतु अवलंबन। देखो जीता जागता, जीता जागता यदि कोई विहरमान उदाहरण यदि कोई है, निदर्शन यदि है, तो श्रीमद नु जीवन वृत्त है, उनका जीवन। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। श्रीमद एवा प्रत्यक्ष प्रगट परम प्रयोग सिद्ध आत्म सिद्धि ने प्राप्त थયેલ पुरुष छे, એટલે જ એમણે પ્રણીત કરેલ आत्म सिद्धि आदि में। देखो काका साहेब कालेलकर ने भी आत्म सिद्धि को कितनी गहराई से पढ़ा था। आत्म सिद्धि आदि में आटलू बधु अपूर्व दैवत अनुभवाय छे। क्या गजब की भाषा, क्या महिमा उन्होंने उनके बारे में यहाँ की है। सच में आत्मार्थता के बारे में यदि हम सोचें, और खाते पीते उठते बैठते वैराग्य 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 वैराग्य, वीतरागता वीतरागता, इसका यदि संचार संचेतन हर श्वास श्वास में
किसी के जीवन में देखने जैसा है। सचमुच में कारुण्य मूर्ति, वैराग्य मूर्ति श्रीमद जी के जीवन में। श्रीमद जी के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसे अनगिनत प्रकरण हैं। मैं आपको उनके गद्य और पद्य साहित्य के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। देखिए, और संक्षेप में कहें, उन्होंने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है, पद्य में भी बहुत कुछ लिखा है, मतलब प्रोज पोएट्री दोनों। उनकी पोएट्री तो अपने को ख्याल ही है, जैसे आत्म सिद्धि है, अपूर्व अवसर है, यम नियम संयम आदि कियो, इसके संदर्भ में है। बहुत सारे ऐसे काव्य उन्होंने लिखे हैं। लेकिन साधर्मियों को लिखे गए 700-800 सारे उनके आध्यात्मिक पत्र, एक एक पत्र में वैराग्य, एक एक पत्र में जैन सिद्धांत, स्वतंत्र काव्य हैं। उनकी सबसे पहली रचना है पुष्पमाला। अभी उनके कुछ वाक्य भी बताऊंगा आपको। उसके अलावा मोक्षमाला उनकी अति प्रसिद्ध रचना, मोक्षमाला, भावना बोध, आत्मसिद्धि शास्त्र, ये तो सब स्वतंत्र रचनाएं हैं। वचनामृत, बोध वचन और महानीति, पंचास्तिकाय की गुजराती कविता, रत्नगढ़ श्रावकाचार में से 3 भावनाओं का विशेष द्रव्य संग्रह का भी नाम उन्होंने लिया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा है, उस द्रव्य संग्रह का भी उपदेश नोंद, उपदेश छाया, व्याख्यान सार, ये कई ऐसे उनके गद्य और पद्य के सारे शास्त्र अपने पास उपलब्ध है। देखिए, मैं उनकी विशालकाय साहित्य के माध्यम से, ऐसा कहा जाता है कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा अपनी कृतियों के माध्यम से हम आप लोगों के सामने मुखर हुआ करता है। जैसे हम आचार्य कुंद देव को, उनके हृदय को जानना चाहे तो समय सार को पढ़े, प्रवचन सार को पढ़े, उनके परमागमन को पढ़े, हमें आचार्य कुंद देव का आध्यात्मिक स्वरूप, प्रशासक स्वरूप, विद्वत स्वरूप, ये सारा दिखता है। उनकी निजात्म भावना, नियम सार, आचार्य संहिता की पराकाष्ठा, अष्टपाहुड़, परम तत्व प्रचारक और प्रसारक, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, और आध्यात्मिकता, समय सार, रयन सार में देखो आप तो उनकी संघ संचालन की व्यवस्था, अद्भुत रचनाएं हैं परमागमों के माध्यम से। और एक बात मैं कहूं आपको, आप नोट करके रखिए इस बात को, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो श्रीमद जी ने जो उस समय जो साहित्य लिखा है, उस समय के समाज का चित्रण भी इस कृति में हुआ है, हमें स्पष्ट ख्याल में आता है। और हर शब्द शब्द में उनका व्यक्तित्व मुखर होता है, चाहे अपूर्व अवसर पढ़े। मैं तो कई बार, जैसे यहाँ अभी राजकोट में हमारा प्रातः काल अपूर्व अवसर के ऊपर ही विशेष स्वाध्याय चल रहे। अभी तक लगभग 51-52 स्वाध्याय हुए हैं, 7वां छंद चल रहा है। क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभावता, बस ये 7वां छंद विगत 4-5 दिनों से चल रहा है। आज हमने जय धवला आदि के आधार से उन 4 कषायों से संबंधित उनकी चर्चा यहाँ अभी की थी। बीच में एक बात याद आ गई, मैं आपको बात बता दूं कि राजचंद जी से, कृपालु देव से किसी ने पूछा कि जिनागम में तो 4 अनुयोग हैं, तो कौन सा अनुयोग पढ़ना चाहिए? तो इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने कि महापुरुषों के प्रति यदि श्रद्धा कम होती होवे तो हमें प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। यदि जीवन में शिथिलता आ रही होवे तो हमें चरणानुयोग पढ़ना चाहिए। और अपने कर्म के उदय को देखकर हमें दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की यदि खोटी वृत्ति होती होवे तो अपने कर्म सिद्धांत को समझने के लिए करणानुयोग पढ़ना चाहिए।
और मोक्ष मार्ग के प्रति, आत्मा परमात्मा के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति, वीतरागता के प्रति, सपर भेद विज्ञान के प्रति श्रद्धा ढीली होती होवे तो हमें द्रव्यान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। क्या गजब की बात। मतलब ज्ञानियों का व्यक्तित्व, उसकी महिमा कम नहीं होनी चाहिए, प्रथमान योग पढ़ो। जीवनचर्या में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, चरणान योग पढ़ो। कर्म सिद्धांत में दूसरों के प्रति दोष देने के भाव नहीं होने चाहिए, करणान योग पढ़ो। और श्रद्धा मचक नहीं खानी चाहिए, उसके लिए द्रव्यान योग। बस में 4 अनुयोगों का क्या गजब, क्या गजब की बात। ऐसा असंख्य उदाहरण है। कोमल बेन, आपको शायद पता होगा, वीतरागवाणी.com, आत्मधर्म.com, औषधि जे भव रोगना, जे 1 आवर से भी ज्यादा है, वो हिंदी में भी ट्रांसलेट है और गुजराती में तो ओरिजिनल है। पूरे पत्रों में से कई ऐसे अंशों को कोट किया है और उसमें अपूर्व अवसर के अंश, पूरा प्रोज पोएट्री। मैं तो अभी तक उसको सैकड़ों बार विगत 2-3 साल में सुन चुका हूं। इतनी सुंदर रचना है। एक बार चालू करो तो आप बिल्कुल सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, इतना आनंद आता है। बहुत सुंदर रचना है। मैं उसमें से भी कुछ कोटेशंस आपको यहाँ सुनाऊंगा अभी। तो देखिए, श्रीमद जी की बिल्कुल 17 साल की उम्र में जो रचनाएं उन्होंने की है, जबकि 9-10 साल में, 14 साल में ही उनमें कवित्व शक्ति तो अवगत हो ही गई थी, लेकिन जो उनका जीवन चरित्र अपने पास उपलब्ध है, सबसे पहली उनकी रचना है पुष्पमाला। उस पुष्पमाला में पहला ही वाक्य है, प्रथम फर्स्ट स्टेटमेंट, रात्रि व्यतिक्रमी गई, प्रभात थयु, निद्राती मुक्त थया, भाव निद्रा टाळवानो प्रयत्न करजो। पहला ही वाक्य। रात बीत गई है, प्रभात हो गया है, निद्रा से मुक्त हुए हैं, देह की निद्रा से मुक्त हुए हैं, अब भाव निद्रा टालने का प्रयत्न करो। क्या सुंदर भावना और क्या अद्भुत उन्होंने, ये पहला ही वाक्य है। आगे Seems like he's experiencing some technical difficulty. We'll just give him a few minutes. I'm sure he'll be back. दो प्रहर, कोमल में आवाज आवे छे? दो प्रहर निद्रा, आवे छे आवाज। ओके। दो प्रहर संसार प्रयोजन, गृहस्थ अवस्था है तो संसार प्रयोजन भी। तो 8 प्रहर की उन्होंने पूरी गिनती, पूरा कैलकुलेशन करके हम आप लोगों को दिया है। कि बहुत अपूर्व रचना है और इसमें कई ऐसे बोल हैं, 108 बोल वाक्य हैं, बहुत सुंदर 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 हैं। आप लोग इसका जरूर जरूर अभ्यास करिए। देखिए, रोग और महामारी के दौर में से हम आप लोग गुजर रहे हैं। काल कोई ने नहीं मुके, बहुत वैराग्य प्रेरक। मोती तड़ी माला गळामा, मूल्यवंती मलकती, हीरातणा शुभ हारती, बहुकंठ कांति झळकती, आभूषणोथी ओपता, भाग्या मरण ने जोईने, जन जानिए मन मानिए,
नव काल मूके कोई ने। ये कितनी सुंदर पंक्ति है। नव काल मूके कोई ने, समय किसी को छोड़ता नहीं है। काल मतलब यहाँ मरण, क्योंकि जो जन्मा है उसका मरण सुनिश्चित है। ऐसा बहुत सुंदर। इसमें अंतिम पंक्ति भी बहुत बढ़िया है। तरवार बहादुर टेक धारी, पूर्णता मापे किया। हाथी हणे हाथे करिए, केसरी सम देखिया। एवा भला भड़वीर ते, अंते रहेला जो रोईने। जन जानिए मन मानिए, नव काल मूके कोई ने। काल किसी को नहीं छोड़ता है, परम सत्य का उद्घाटन है। उसी प्रकार धर्म से संबंधित बहुत सुंदर वाक्य है। इसके बाद इस पुष्पमाला में एक 5वां प्रकरण है बोध वचन। इसमें 125 बोध वचन है, जिनमें 108 से 118 10 बोल है। 10 स्वद्रव्य अने पर अन्य द्रव्य भिन्न भिन्न जुओ, स्वद्रव्य ना रक्षक पराती थाव, स्वद्रव्य ना व्यापक पराती थाव, स्वद्रव्य ना धारक पराती थाव, स्वद्रव्य ना रमक पराती थाव, स्वद्रव्य ना ग्राहक पराती थाव। ये 10 बोल हैं। इनके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के विशेष प्रवचन, इन 10 बोलों के ऊपर इतने अद्भुत बोल हैं कि बोध वचनों में सबसे पहला वाक्य मालूम क्या लिखा है? आहार करवो नहीं। तो भोजन के बिना तो कैसे चलेगा? आहार करवो नहीं ऐसे लिखा है। आहार करवो तो पुद्गलना समूह ने एक रूप मानी ने करवो, पण लुप्त थवू नहीं। वाह! आहार करना पड़े तो करना, लेकिन सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, ऐसा समझ करके आहार करना। बहुत सुंदर। इसमें आत्म श्लाघा चिंतवी, आत्म प्रशंसा के भाव नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बोल हैं। ममत्व यही बंद है, ममत्व यही बंद है। स्मृति मां नति ते संभारो। क्या कहा? जो स्मरण में नहीं रहता है ना, उसका स्मरण करना। अरे अपने गुरुदेव बोला करते हैं, करवू जोइए जेनु स्मरण, करी રહ્યા છીએ એનું નિત્ય વિસ્મરણ, તેથી તો થઈ રહ્યા છે ભાવ મરણ। इसलिए जो स्मरण में नहीं है उसको स्मृति में रखो। महावीर नो पंथ विसर्जन करवो नहीं, महावीर के मार्ग का कभी त्याग मत करना। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर एक बोल है, वस्तु धर्म याद करो। क्या कहा? वस्तु धर्म याद करो। देखो वस्तु धर्म याद करो, इस वाक्य में कितने अक्षर है कोमल बेन? 8। वस्तु वस्तु धर्म याद करो, कितने हो गए? 8 हो गए ना। वस्तु धर्म याद करो, 8 अक्षरों वाला एक वाक्य याद रह जाए तो 8 गुणों से अलंकृत होने में हमें कोई नहीं रोक सकता है, सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु स्वभाव ही धर्म है। बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत बोल है। कृपालु देव की भाषा में यदि कहूं, ज्ञानी के एक एक शब्द में अनंत अनंत आगम टपकते, ऐसी सुंदर रचना है ये। आगे अपन बढ़ते हैं। सहज प्रकृति के नाम से एक प्रकरण है, उसमें लिखा क्षमा एज मोक्ष नो भव्य दरवाजो। क्षमा यही मोक्ष का भव्य दरवाजा है। धर्म कर्म मा वृत्ति राखवी,
देखो क्या लिखा आगे, ज्ञानचर्या अने विद्या विलास में शास्त्र अध्ययन में गुथाऊ, अपने आप को गूंथ के रखना, बांधे रखना। और एक वाक्य बहुत सुंदर, संसार में रह्या छता, भले ही संसार में रहते हो परंतु नीति से भोग भोगते हुए भी, इसके बाद वाला शब्द बहुत मार्मिक है, विदेही दशा राखवी। क्या कहा, मतलब श्रीमद जी ये कहते हैं कि सीमंदर बने रहना, सीमंदर, विदेही दशा राखवी। मैं तो गजब का भाव है इसमें, विदेही दशा राखवी। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, आज्ञानीना चरण मा ओ वंदन अगणी। क्या गजब का सुंदर है। इसमें एक प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण भी बहुत बढ़िया है, ये बच्चों को याद करने जैसा है। देखो छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे उत्तर है। जगत में आदरवा योग्य शू छे? सदगुरु नु वचन, जवाब भी दे दिया। शीघ्र करवा योग्य शू छे? कर्म नो निग्रह। सदा त्यागवा योग्य शू छे? अकार्य। अकार्य। मोक्ष तरुनु बीज शू छे? देखिए मोक्ष तरुनु बीज शू छे? क्रिया सहित सम्यक ज्ञान। क्या कहा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष वाली बात है, ये धौला की बात है, धौला में आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। शूरवीर कौन छे? जे स्त्रीना कटाक्षથી विंधाय नहीं। महत्ताનું મૂળ શું છે? કોઈ પાસે કોઈ याचना न होय એનું नाम महानता। सदा जागृत कौन होता है? विवेकी। अंधा कौन होता है? कामी और रागी। बहरा कौन होता है? जो हितकारी वचन नहीं सुनता है वो। हाँ, और मूंगा कौन होता है? जे अवसर आवे प्रिय वचन न बोली सके। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है पूज्यपाद आचार्य ने, गुणेशु अनुराग अनुराग भक्ति, बराबर। और आत्म कार्य में, उल्लास के कार्य में, कुशलेशु कुशल कार्यों में अनुराग का नहीं होना, उसका नाम प्रमाद। क्या गजब की बात है। हाँ? सदा पूज्य कौन होते हैं? वीतराग देव। साधु और सुधर्म। हमेशा ध्यान रखने लायक बात कौन सी है? संसार की असारता। कितनी सारी सारी बातें। आगे 12 भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन, पूरे पेज भर भर करके उन्होंने इसमें बहुत सारे ऐसे लेख लिखे हैं। ये पुष्पमाला के अंतर्गत ये सारा प्रकरण है, वहां से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। 12 भावनाओं का भी बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया। और आप सभी जानते हैं अनित्य भावना, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष ते तो जड़ना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, शूराचिए त्या क्षणनो प्रसंग। काव्य भी लिखा और भिखारी के वृत्तांत के माध्यम से अनित्य भावना भी उन्होंने समझाई। उसी प्रकार अशरण भावना में अनाथी मुनि की कथा लिखी है, बहुत सुंदर है। अनाथी मुनि की कथा। अनाथ कौन कहलाता है? अरे जिसके पास राजपाट है वो अनाथ नहीं है। राजपाट हो और जिसके माथे पे धर्म न हो वो सबसे बड़ा अनाथ है। ये राजा को समझाया मुनिराज। बहुत सुंदर कथा, पढ़ने लायक है। उसी प्रकार एकत्व भावना, राजा रानी की कथाएं, अन्यत्व भावना, और एक बहुत सुंदर एक एक भावना के छंद भी लिखे उन्होंने। निवृत्ति बोध, ये अंतर दर्शन में एक निवृत्ति का बोध लिया है। देखिए दुनिया में सत्संग का मिलना महादुर्लभ है। श्रीमद जी ने लिखा है, आ पंचम काल में दुर्लभ, पंचम काल में सत्संग नु मळवू कौस्तुभ मणि समान दुर्लभ छे।
ऐसा लिखा है। कौस्तुभ मणि के समान महादुर्लभ है। तो देखो कितनी खेद की भावना उन्होंने व्यक्त की है। अनंत सौख्य नाम दुख त्यारही न मित्रता। अरे रे, जहां अनंत सुख है, नाम मात्र दुख है, त्यारही न मित्रता, वहां मित्रता नहीं है। और अनंत दुख नाम सौख्य प्रेम त्या विचित्रता। अरे जहां अनंत दुख है, सुख नाम मात्र है, वहां प्रेम है। विषय भोगो आदि में जीवों को मन ललचाता है। गाढ़ न्याय नेत्र ने निहाल रे निहाल तू, निवृत्ति शीघ्र में धारिते प्रवृत्ति बाल तू। बहुत सुंदर इन 12 भावनाओं में उन्होंने सुंदर बातें लिखी है। प्रोज पोएट्री दोनों साथ में अपन लोग ले रहे हैं। उनकी दूसरी रचना है मोक्षमाला। मैंने मेरे जीवन में आज से लगभग 20 साल पहले, मुझे जब गुजराती नहीं आती थी, तब मैंने हिंदी में मोक्षमाला पढ़ी थी। हिंदी में आनंद तो बहुत आया था, लेकिन अब जब मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मानो श्रीमद जी सामने बैठे हों और मुझे समझा रहे हैं। कितनी सुंदर रचना है। ये मोक्षमाला भी उनकी बहुत छोटी उम्र में लिखी हुई है। इसमें देखो, वाचनार ने भलामण, क्या कहा? वाचनार ने भलामण, संबोधन कर रहे। देखो, वाचनार, हूं आजे तमारा हस्त कमल में आऊं छू। कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। हूं तमारा हस्त कमल में आऊं छू, मने यत्न पूर्वक वांचजो, मारा कहेला तत्व ने हृदय में धारण करजो, हूं जे बात कहूं ते विवेक थी विचारजो, एम करशो तो तमे ज्ञान ध्यान नीति विवेक सद्गुण अने आत्म शांति पामी शकशो। आशीर्वचन भी दिया। और आगे देखो, तमे जे वातनी गम पामो नहीं, मतलब जिसमें तुम्हें गतागम नहीं पड़े, तो डाया पुरुष पासे थी समझी लेजो। होशियार लोगों के पास से समझना, समझवामा आलस के मन में शंका करशो नहीं। मतलब समय सार में कहा लिखा है, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, यदि मैं दिखाऊंगा तो प्रमाण करना, मैं यदि चूक जाऊंगा तो तू छल ग्रहण मत करना। 5वीं गाथा। क्या गजब की बात है, कितनी सुंदर बात है। फिर इसमें कर्म का चमत्कार, मानव देह, फिर इसमें अन्य कथाएं वगैरह बहुत सुंदर सुंदर है। मैं एक दया का एक प्रकरण आपको बताना चाहता हूँ। देखो, दुनिया नहीं जानती है कि दया किसे कहते हैं। श्रीमद जी ने इसमें दया के 8 प्रकार समझाए। 8 प्रकार दया के। एक, प्रथम द्रव्य दया, दूसरी भाव दया, तीसरी स्व दया, चौथी पर दया, 5वीं स्वरूप दया। क्या कहा? स्वरूप दया। उसमें लिखा है कि सूक्ष्म विवेक से स्वरूप विचारणा करना ये स्वरूप दया है। तो बिल्कुल समय सार जैसा लगता है। ऐसा इसमें 8 प्रकार के दयाओं से संबंधित। अच्छा, निश्चय दया, बेन कोमल बेन, निश्चय दया की तो व्याख्या इतनी अपूर्व है। शुद्ध साध्य उपयोग में एकता भाव अने अभेद उपयोग नु थवुं एनु नाम निश्चय दया। स्व समय जैसी व्याख्या है। स्वद्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र में ले लीन होय तेने स्व समय कहेवाय। कैसी सुंदर इसमें चर्चा है। मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ता हूं। भक्ति से संबंधित भी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लिखे हैं। देखिए, सत्संग के बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था, सत्संग ये सर्व सुख नु मूल छे। सत्संग तो सभी का मूल है। सत्संग से प्राप्त हुआ एक वचन अमूल्य लाभ हमें देता है। और जहां शास्त्रों का सुंदर प्रश्नोत्तर होते हो, उत्तम ज्ञान दिया जाता हो, सुकथा होती हो, चारित्र पर विचार बंधाए, जहां तत्व ज्ञानना तरंगनी लहरो छूटे, एवो सत्संग मळवो महादुर्लभ छे। ऐसी ऐसी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ श्रीमद जी ने की है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रसंग हैं। ब्रह्मचर्य से संबंधित तो बहुत सुंदर उनके विचार हैं।
सुंदर शियळ सुर तरु मनवाणी ने देह, जे नर नारी सेव से अनुपम फल लेते हैं। पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से ओ सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। कुछ अनुभव परक 2-3 मिनट में मैं विषय पूरा करता हूं। इसमें 222 पेज पे एक बहुत सुंदर, बहुत मेरे हृदय को प्रकरण छू गया, वो मैं प्रकरण आपको बताना चाहता हूं। देखिए आप 222 पृष्ठ पे एक प्रकरण है, अंतर ज्ञान थी स्मरण करवा एवो कोई काल जनातो नथी, सांभरतो नथी के जे काल में जे समय में आ जीवे परिभ्रमण न कर्યું। क्या कह रहे? मतलब अंतर दृष्टि से मैं सोचता हूं तो लगता नहीं है कि मैं कभी परिभ्रमण के बिना रहा हूं। गुरुदेव श्री नहीं कहते हैं अपने, ये जीव अनादि का है, परिभ्रमण के बिना एक समय भी रहा नहीं है। ये बहुत सुंदर प्रकरण है, इसलिए समाधि का विस्मरण नहीं करना। ये बात गमे तेम हो, गमे तेटला दुख वेठो, गमे तेटला परिचय सहन करो, गमे तेटला उपसर्ग सहन करो, गमे तेटली व्याधिओ सहन करो, गमे तेटली उपाधिओ आवी पड़ो, गमे तेटली आधिओ आवी पड़ो, गमे ते जीवन काल एक समय मात्र हो, दुर्निमित्त हो, पण एम करू कि बस स्वरूप में लीन रहू। ऐसी सुंदर गम पड्या विना अगम अनर्थकारक छे। ये 5 सूत्र सुनिए आप, 5 मंत्र है। गम पड्या विना आगम अनर्थकारक है, थई पड़े छे। सत्संग विना ध्यान तरंग रूप होय छे। सत्संग नहीं है तो ध्यान तरंग है। संत विना अंतनी बात में अंत पमातो नहीं। संत के बिना अंत की बात में अंत हम पा नहीं सकते हैं। लोक संज्ञाति लोकाग्रे जवातु नहीं। लोक त्याग विना वैराग्य यथा योग पामवो दुर्लभ छे। और 2 बातें कह करके मेरी बात मैं पूरी करता हूं। 210 पृष्ठ जरूर जरूर आप लोग इस प्रकरण को देखिएगा। महावीर भगवान ना बोध नो पात्र कौन, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिखे लक्षण। सत्पुरुष ना चरण नो इच्छुक, सदैव सूक्ष्म बोध नो अभिलाषी, गुण पर प्रशस्त भाव रखने वाला, ब्रह्म व्रत में प्रीतिमान, जबकि स्वदोष को देखे और उसको छेदने का उपाय करे, उपयोग थी एक पल पण भरनार, एकांतवास ने वखाणनार, तीर्थादि प्रवास का उचरंगी, आहार विहार निहार नो त्यागी अने पोतानी गुरुता दबावना, ये उन्होंने लक्षण लिखे। और एक अंतिम बात मैं बताऊं आपको, ये परिवार जो है ना, घर परिवार अपना, देखो हीरे के व्यापारी जब वो हीरे का व्यापार करते थे तब पग मुक्ता पाप छे, जोता झेर छे, माथे मौत भमे छे, एम विचारीने आजना दिवस में प्रवेश कर छे। ऐसा बोलने वाला महापुरुष ये लिखते हैं, कुटुंब रूपी काजळनी कोठड़ी में वासती संसार वधे छे। गमे तेटली तेनी सुधारणा करशो तो पण एकांतथी जेटलो संसार क्षय थवानो छे तेनो 100मो हिस्सो पण ते काजळ ग्रहमां રહેવાથી થવાનો નથી। ये कुटुंब परिवार तो काजल की कोठरी है। ऐसा अद्भुत उनका जीवन गद्य और पद्य में। और जैसे अभी शुरुआत में हम आप लोगों ने नर्मदा मेंशन, यहाँ राजकोट का जो अपन ने दृश्य देखा, वहां बहुत सुंदर उनकी पूरी सारी वहां तादृश्य रचना की गई है। उनका जो अंतिम संदेश है, अपूर्व अवसर आदि का विषय तो अपन छू ही नहीं सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। आत्मसिद्धि और अपूर्व अवसर निरंतर हम आप लोगों को इनका पाठ जरूर जरूर करना चाहिए, गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने तो कई व्याख्यान इनके ऊपर किए हैं। अभी जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अंतिम संदेश में इच्छे छे जे जोगी जन अनंत सुख स्वरूप, उसके 2-4 छंद में बोल करके मेरी बात पूरी करता हूं।
देखिए, जिन प्रवचन दुर्गम्यता था के अतिमतिमान, अवलंबन श्री सदगुरु सुगम अने सुख खान। उपासना जिन चरणनी अतिशय भक्ति सहित, मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटित। नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग नहीं क्षोभ, महापात्र ते मार्ग ना परम योग जित लोभ। आवे बहु समदेश मा छाया जाय समाय, आवे तेम स्वभाव मा मन स्वरूप पण जाय। उपजे मोह विकल्पति समस्त आसंसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वार। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद ते वरते जयते। प्रणमु पद ते वरते जयते। ऐसे आत्मज्ञानी और आत्म कल्याण के मार्ग में प्रशस्त रहने वाले, लोकेशना से दूर शतावधानी को जिन्होंने लात मारा, छोड़ दिया, ऐसे योगी पुरुष जिनकी आत्म सिद्धि, अपूर्व अवसर, अमूल्य तत्व विचार आदि रचनाओं का हम आप लोग खूब खूब स्वाध्याय करें और अपना जीवन भी ऐसा ज्ञान वैराग्य में बनावे, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। कोमल बेन ने नैरोबी आपके एसोसिएशन की तरफ से मुझे ये अवसर दिया। पूरे 2-3 दिन से मैंने पूरे इस श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ का पूरा अवगाहन करने का मुझे आनंद मिला। बहुत 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 आनंद आया। जेणे आत्मा जाण्यो तेणे सर्व जाण, જ્યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષ રહિત થવું તેનું નામ ધર્મ છે। ऐसा महामंत्र श्रीमद जी ने हम आप लोगों को दिया है। हम आप लोग उनके साहित्य को पढ़ें और ज्ञान वैराग्य की साधना करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सुनील जी। जैसे आपने कहा कि निश्चय दया होनी चाहिए खुद पर, और ये व्याख्या बहुत ही अच्छी थी जैसे आपने एक्सप्लेन की कि खुद पे निश्चय दया होनी चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र પોતાના આત્માને સમજવો જોઈએ। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की है। आई एम श्योर एवरीबडी विल रिमेम्बर एटलीस्ट 2 to 5 of the poetry and prose that you have explained today. So thank you very much. And और एक बात कहनी थी, इस युग में 2 युग पुरुष हुए, एक है श्रीमद् राजचंद्र जी, एक है पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी। And this year we are celebrating 100 years of Gurudev receiving Samaysar Shastra. Gurudev has never forgotten that Srimad Ji has played such an instrumental role in him receiving Samaysar Shastra. In Samvant 1975, if Srimad Ji had not translated the Samaysar Shastra from Dhundari Bhasha to Hindi, of course, he didn't do it himself. He got a group of Pandit to do it, but he took that initiative to do it. And because he did it, today we have Samaysar Shastra. In Samvant 1978, Gurudev received it in the month of Falgun. And in the month of Vaishak, he experienced his soul. So truly, the entire Jain community is really
indebted to Srimad Rajchandra ji for translating this Samay-sa Shastra from Dhundari Bhasha to Hindi. And Gurudev, in his 9,000 pravachans, he has always remembered Srimad Rajchandra ji. At least in 5,000 to 6,000 of his pravachans, he has remembered Srimad Rajchandra ji. And as we celebrate this enlightened soul, once again, I would like to take this opportunity to thank Pandit Sunil Bhai Shastri of Rajkot. Thank you. आप हमेशा अपनी नॉलेज हम लोगों के साथ शेयर करते हो और एकदम अच्छी तरीके से, कि वो एकदम लाइट हार्टेड हो जाता है होता है और फिर भी आत्मा की बात समझ में आ जाती है. Thank you, and I wish everyone a good evening. Jai Jinendra, and may we all experience the soul. Good night. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो